Assalamu alaikum. Good morning, ladies. Beautiful ladies. On behalf of BC World, I welcome you all on this special event to aware about breast cancer. Breast cancer is the most common cancer in women around the world. Unfortunately, Pakistan has the highest ratio in Asia, as estimated more than 83,000 cases reported every year. We all know about October is Breast Cancer Awareness Month, an annual campaign to raise awareness about the impact. तो हमारी जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो भी थोड़े से वैसे मुख्तलिफ है। दूसरी हम देखते हैं कि हम डिजीज को कितनी जल्दी पिकअप करते हैं। सो इफ यू सी द पिकअप रेट इन पाकिस्तान, अर्ली डिजीज पिकअप रेट इज वेरी लो। इसकी चार स्टेजेस होती हैं। स्टेज वन इज व्हेन इट इज इन द बिगिनिंग, व्हेन द ट्यूमर इज वेरी स्मॉल, एंड स्टेज फोर इज व्हेन इट हैज गॉन बियॉन्ड द ब्रेस्ट बाउंड्रीज और लंग लिवर बोन्स में चला गया है। So if you see data which is comprises of good 15,000 data, stage 1 is very small. And if I, this is not only Liaquat proof for Liaquat National, मैंने बाकी पाकिस्तान की सारी देखी हैं, and everywhere the highest number of stage 1 is 10%. और अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो स्टेज 1 comprises of 55 to 60%. सो जाहिर है अगर हम स्टेज देर से पिकअप करेंगे इट विल बी अ चैलेंज टू ट्रीट, एंड अगर हम देर से करेंगे तो हमारी मोर्टेलिटी फिगर्स भी बढ़ जाती है। सो हु इज लाइकली टू probably get breast cancer? What are the risk factors? You know, there's a long list. अब हम इसको डिवाइड करते हैं just to go into the depth of it. There are some risk factors which we cannot change, but there are some risk factors which we can change and decrease our risk for having breast cancer, and we'll talk about them in detail. Being a female itself is a risk factor, और हम अपनी सेक्स चेंज नहीं कर सकते। जब हम 1000 फीमेल्स देखते हैं तो एक मेल मेंबर मिलता है जिसको कोई ब्रेस्ट कैंसर होता है। सो वी आर एट रिस्क because of by virtue of being the females. Secondly, as the age increases, the incidence of breast cancer also increases. I wish हम अपनी उम्र सारी खवातीन यहाँ रोक सकते, but that can't happen, especially at my age. So we, as the age increases, the breast cancer increases. I'm not saying that young women can't have it. We just saw the figures, but the probability of getting breast cancer gets higher and higher as the age increases. बॉडी का लिम्फ वंडर आर्म में आता है, वो ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पे वो सारा फ्लूइड स्किन सोलन हो जाता है, and you see these tiny hair follicles, they dimple inside and it gives you the picture of orange peel appearance. So when we see that, it can happen in other infections also. So that's the reason I'm trying again and saying, okay, please don't scare yourself if God forbid somebody has it. Women have बहुत सारे लोगों के फीडिंग में, प्रेगनेंसी में, अंडर आर्म में फैट डिपॉजिट हो जाती है। I'm not saying all of them are likely to have breast cancer. All I'm saying is get yourself checked. All know that Cancer Council's Pink Ribbon campaign aims to raise awareness about breast and gynecological cancer, as well as raise funds for prevention programs, support services, and vital cancer research. Luckily, we have founder member of Pink Ribbon in Pakistan, Miss Maliha, with us. I would like to request, please come on the stage and share about the aims of having Pink Ribbon October in month of October, about campaigns, about preventions overall. Please, let's welcome Miss Maliha, founder member, Pink Ribbon. This prosthesis at our stores, but more than that, we donate it to hospitals, to NGOs, to deserving patients. It's only for 140 rupees, and Dr. Rufina is our biggest buyer. She gives it to each and every patient who undergoes a mastectomy surgery. Along with this, we also manufacture a special bra for breast cancer patients. And so at least women go away from the operating table with a semblance of completion, feeling complete. So it's just a foam prosthesis. Anyway, the pink ribbon that you all are wearing today
symbolizes support for breast cancer awareness worldwide. It is an emblem of hope for breast cancer patients, and it is a symbol of celebration for survivors. So we urge you to wear this ribbon every single day, at least in the month of October, and make it a talking point with your colleagues, with your friends, with your family, and even the male members of your circle. The importance of examining yourselves every month to detect early signs, because in early detection lies the cure for breast cancer. So I urge you today to go home and maybe just teach your female domestic health how to examine herself. She would not have access, they would not have access to these, gatherings where you are taught breast self examination. And there are many free mammograms available in this month, screening mammograms, simple mammograms. So if you have female domestic help over the age of 40, maybe you can arrange for her to have one. And it's so nice to address this August gathering of working women. You're truly inspirational. And I saw the interaction at the earlier session. And truly, as Dr. Rufina Sumro said, we need more women in our workforce. All right, see, root causes of breast cancer, medication, surgeries, वो नॉलेज जो इस इवेंट के थ्रू हम आपको देना चाहते थे, एंड आई होप कि इतना फ्रूटफुल अवेयरनेस, या हम ये कह सकते हैं कि फ्रूटफुल ये गैदरिंग अब तक रह चुकी होगी. लेकिन अगेन वही बात होती है कि हम दुआ भी करते हैं, हम दवा भी करते हैं, बट हम उस वक्त तक अपने आप को क्योर या एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं ले जा सकते जब तक कि हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में ना चेंज कर दें. बट एज अ वर्किंग वुमेन वी ऑल नो कि हमारी लेडीज़ माशाल्लाह पाकिस्तान लेडीज़ काफ़ी मोटिवेटेड भी हैं, काफ़ी फिज़िकली साइकोलॉजिकली हेड स्ट्रॉन्ग होती हैं. बट ऑन द अदर हैंड वो आप किस तरह रख सकते हैं, वर्कलोड अपनी जगह, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह, बट हाउ वी कैन गेट टाइम, या फिर हम किस तरह अपने लिए टाइम निकालें और अपनी ख़ासकर ये जो हम न्यूट्रिशन या लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं उसका हमें किस तरह ख्याल रखना चाहिए, जस्ट टू सेव आवर सेल्फ, आवर लाइफ फ्रॉम डेडली डिजीज़ लाइक कैंसर. और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि पाकिस्तान में हर साल इसका रेशियो बढ़ रहा है. और जैसे डॉक्टर रुफीना ने भी हमें कहा था कि वेस्ट में फर्स्ट स्टेज कि अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है तो हम उसको क्या खुराक दें, क्या उसको खाना चाहिए, क्या उसके लिए चीज़ फ़ायदेमंद है, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, कितना उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं. और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो उसको किस तरीके से मैनेज करें. ये प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा हमें आती है. देखिए, हम जो बात शुरू करेंगे बेसिकली वो हम इससे शुरू करते हैं कि अगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और हम हेल्दी हैं तो सबसे पहले तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं. हम ये क्यों समझें कि जब हमें हो गया तो उसके बाद हम ये करने लगे. हमने पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं अपने फूड के हवाले से. तो सबसे पहली चीज़ जो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, और आप लोग अपने पास ज़रूर, आपके हाथ में पेन भी है, नोटपैड भी है, तो ज़रूर ये चीज़ें ज़रूर अपने पास नोट डाउन करें कि सबसे पहले आपने फूड पिरामिड देखना है. आज अपने घरों में जाके सबने फूड पिरामिड देखना है कि वो क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इतनी तफसील में तो उसको नहीं बता सकूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी. अगर हर इंडिविजुअल को फूड पिरामिड समझ में आ जाए और वो इसको समझ ले तो मेरे ख्याल में हमें अपना पूरा डे प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हमें हमारे यहाँ मिथ्स बहुत है, अवेयरनेस की कमी है. आप लोगों में से बहुत सारे लोग सेकंड करेंगे इस बात को कि जब कभी भी हम अपने वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं, ये बड़ा हॉट टॉपिक है और हमेशा ही रहेगा, तो हम जब अपने वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं
तो हमारे पास सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होता है? हम चावल बंद कर देते हैं, हम रोटी बंद कर देते हैं। आप बताएं मुझे, एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए ताकि आप यहाँ से कुछ चीज़ लेकर जाएं आज। सबसे पहले हम यही करते हैं ना, सबसे ऑयल कम कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास, और हर कोई हमें ये कहता है कि आपने रोटी बंद करनी है, चावल बंद करना है और आपने ऑयल बंद कर देना है, ठीक है। शुगर बंद कर देनी है, ठीक है, यस राइट। और इसके अलावा मीठी चीज कोई नहीं खानी, यस। एग्जैक्टली आपको साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं लोग कि आप कहते हैं हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपको यहाँ से आज बात शुरू करती हूँ और आपकी मिथ दूर करती हूँ, और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट कर रही हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरह रिलेट कर रही हैं। बीइंग अ टीचर बहुत समझाने की आदत है कि चीज़ जब तक समझ में ना आ जाए उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती। आपने, जब हम रोटी की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, सबको पता है, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम निशास्ता कहते हैं, इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। आप हाथ उठा रहे हैं, आप पलके झपक रहे हैं, आपका दिल हार्ट बीट कर रहा है, क्या ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो आप जब सोते हैं जब भी काम कर रही होती हैं? आपका लंग्स काम कर रहे हैं, आपका ब्लड जा रहा है। क्या कभी हमने ये सोचा कि हम हर चीज हमें जमीन की तरफ खींचती है? इसी तरीके से जब हम यहाँ खड़े तो हमारे अंदर हमारा जो ब्लड है उसको भी नीचे ही गर्दिश करना चाहिए, क्योंकि जमीन की कशिश है ना, उसको हर चीज को खींच रही है जब भी हम जमीन पे खड़े हुए हैं। सिर्फ खवातीन में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का रेशो क्यों मतलब इतना हाई है, और जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें उसका रेशो इतना कम क्यों है? खवातीन का रेशो वैसे ही ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बात ये है कि जो डिफरेंट दूसरे कैंसर हैं वो भी खवातीन में हो रहे हैं, लेकिन रेशो खवातीन में ज़्यादा होने का मतलब ही है कि खवातीन ज़्यादा है, और जब खवातीन ज़्यादा हैं तो उसी चीज़ का रेशो ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो वो ऑर्गन्स मर्द में तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका रेशो कम है। तो ये चीज़ जो है इसीलिए बढ़ रही है। और ओबेसिटी जो है, मोटापा, एक बहुत बड़ी वजह है खवातीन के अंदर। जाहिर सी बात है ब्रेस्ट फीडिंग भी खवातीन ही कराती हैं, तो इसीलिए रेशो ज़्यादा है। वरना अल्टीमेटली हर कैंसर तो वैसे ही बढ़ रहा है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का रेशो ज़्यादा होने की वजह ये है, खवातीन ज़्यादा है। Hello, I just wanted to extend more on the point about desi ghee and butter. There is actually now recent studies which show that because oil is more processed and it's not really made from grains and fruit and vegetables as such. So would you endorse that because of our lifestyle that we should actually go back to using desi ghee and butter rather than than use oil, vegetable oil or soybean oil or whatever? देखिए, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, सबको क्लियर हो जाएगी बात। जब हम प्रोसेस्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इंडस्ट्री में चला गया, ठीक है, राइट। हमारे यहाँ एक ब्रांड है जिनका जो मक्खन है बच्चों में बड़ा मकबूल है, और जब हम उसको स्प्रेड करते हैं, आई एम सॉरी आई कांट टेक द नेम, जब हम उसको स्प्रेड करते हैं ब्रेड पे तो बड़ी इजीली स्प्रेडेबल है, स्प्रेड हो जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन जब हम बटर फ्रिज में रखते हैं तो वो स्प्रेड नहीं होता, ठीक। वो वेजिटेबल ऑयल से बना है। वेजिटेबल ऑयल के अंदर एक प्रोसेस होता है, वो बताना मुझे ज़रूरी है। उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन। जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो वो ऑयल जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको एक लेवल तक सॉलिडिफाई कर दिया, बस एक लेवल तक, ज़्यादा नहीं किया। जबकि बटर जो है उसके अंदर जो आपका प्रोसेस्ड बटर है उसके अंदर फिर मसले हैं। जो आपके घर का निकाला हुआ मक्खन है वो आपका ताज़ा मक्खन है, उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग स्टेप इन्वॉल्व नहीं है। जब हम ये ऑयल बनाना शुरू करते हैं ना इंडस्ट्री में, तो उसमें हमने हर फूड लेवल के पीछे लिखा, हर प्रोडक्ट के पीछे एक फूड लेवल दिया गया होता है, उसके पीछे आपने ट्रांस का वर्ड सुना होगा, ट्रांस फैट,
इसमें ट्रांस फैट ज़ीरो है, इसमें है ही नहीं ट्रांस फैट। तो ये इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के दरमियान में बनता है जब हम ऑयल को ट्रीट करते हैं। ट्रांस फैट बनता है जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, अदरवाइज वो मौजूद नहीं होता। तो जब आप प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी ऑयल की तो उसमें वो चीज़ आ जाती है। इस वक्त जितने भी प्रोसेसिंग ऑयल है, जितने भी प्रोसेस्ड ऑयल है, वो सारे जो है वो हमारी मजबूरी है कंज्यूम करना। लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐड ऑन करूँगी कि उससे बहुत बेहतर है कि आप नॉर्मल जो है वो सरसों का तेल ले लें, आप इस्तेमाल करें। आप कोकोनट ऑयल लेस प्रोसेस्ड कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, रॉ फॉर्म में अवेलेबल है कोकोनट ऑयल, बजाय इसके कि हम जो है वो इन ऑयल्स की तरफ जाएं। लेकिन अगेन बात ये है कि अब सरसों के तेल एक्सपेंसिव है आपके नॉर्मल तेलों से, तो आपने उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करना है। मैं बार बार ये बात करती हूँ, क्वांटिटी को रिड्यूस करें, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी चीज़। तो जहाँ तक बात देसी घी की रही, तो देसी घी जो है वो देखें, दूध के ऊपर बलाई कब आती है? दूध के ऊपर बलाई जब आती है जब उसके अंदर ऑयल होता है। और बलाई के अंदर क्या होता है? बलाई जो है वो रिच है विटामिन ए से एंड विटामिन डी से। जब हम उसकी बलाई उतार देते हैं दूध के अंदर कुछ नहीं बचता, और वो जो बलाई है उससे क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो वो मक्खन जो है वो विटामिन डी और विटामिन ए रिच है। क्या वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है जिसके अंदर विटामिन ए फोर्टिफाई किया गया हो, डाला गया हो, या वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है जिसके अंदर नेचुरली विटामिन ए मौजूद है? दैट इज़ द बिग डिफरेंस। तो यहाँ पर आप जो है वो कोशिश करें कि देसी घी भी, मैं प्रोसेस देसी घी की बात नहीं कर रही, उसकी भी ब्रांड्स आ रही हैं, मैं उस देसी घी की बात कर रही हूँ जो अपने घरों में निकालते हैं। असल में अब वो माहौल आहिस्ता आहिस्ता लोग अडेप्ट कर रहे हैं कि आप अपने घर में वो चीज़ करें। इससे क्योंकि हमारा अब दीन ईमान नहीं रहा ना इन चीज़ों में, सारा मसला ही है। तो आपके लिए वो देसी घी ख़त्म नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगेन वही देसी घी अगर आपने लिमिट से बाहर कंज्यूम करना शुरू करा तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो जाएगा साथ में। तो आपने जो उसका फूड पिरामिड, मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, फूड पिरामिड पे जाके देखिएगा ऑयल की क्वांटिटी कितनी अलाउड है पर डे। फिर आप कहेंगे कि हाँ ये बात जो उन्होंने करी थी बिल्कुल सही की थी। तो जब आपको अलाउड ही इतना सा है तो आप इतना सारा क्यों कंज्यूम करेंगे, चाहे वो बेशक सही भी हो, लेकिन आपने कम ही लेना। अच्छा, इनके सवाल को मैं थोड़ा सा एलाबरेट करूंगी। और आपने देखा होगा बीच में बड़ी फेसबुक से सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही थी खवातीन को लेकर कि जो खवातीन चिकन को लेकर मैं बात करूंगी, और कहा गया था कि चिकन विंग्स नहीं खाना चाहिए स्पेशली खवातीन को और बच्चियों को, क्योंकि ये लेटर ऑन ब्रेस्ट कैंसर मतलब कार्सिनोमा सेल्स रीअकर करते हैं। रीज़न कि वो उनको जो फीड दी जा रही है, उनको इंजेक्ट की जा रही है, कोई जो इंजेक्ट उनको किया जाता है चिकन्स को, वो कॉज बनता है खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के, स्पेशली अगर वो चिकन विंग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं या खा रहे हैं या फेवरेट है। ये एक बड़ा बीच में मौजूद जो है बहुत ज़ोर पकड़ गया था, और मेरा एक फेसबुक पेज भी है डॉक्टर जुबाला के नाम से, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। वहाँ मैंने इसके हवाले से बात भी की हुई है बहुत डिटेल में, और मैं टॉपिक्स उठा के बात करती रहती हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊँ कि हार्मोन्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है। हार्मोन्स कोई भी खाएगा ना, अगर कोई भी, तो वो स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इंसुलिन खाई नहीं जाती, लगाई जाती है। इंसुलिन इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन, इज़ अ हार्मोन। तो इसी तरीके से हार्मोन्स जो हैं वो हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसका असर ही ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगते होंगे, बात तो ख़त्म हो गई। फीड में आप दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप सवाल ये हुआ कि इंजेक्शंस लग रहे हैं। आपको पता है हार्मोनल इंजेक्शंस कितने एक्सपेंसिव होते हैं? हार्मोन इंजेक्शंस इतने एक्सपेंसिव हैं कि अगर वो हर मुर्गी को लगने लग जाएंगे तो उसकी कॉस्ट पता नहीं कहाँ चली जाएगी। और क्या हर मुर्गी को पकड़ के इंजेक्शन लगाया जा सकता है? अबाउट दैट फीड को लेकर भी बहुत आया। मैंने आपको बात करी कि अगर हम फीड पे हार्मोन डालेंगे तो वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, आप चिकन के स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा प्रोटीन, उसकी कोई, वो तो ब्लड में शामिल ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो डाइजेस्ट हो गया, वो हार्मोन ही नहीं रहा। तो हार्मोन्स के इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते, हार्मोनल इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते। ये जेनेटिकली फ़र्क आया है। पहले मुर्गियां जो है वो 6-6 महीने में बड़ी होती थी, अब मुर्गियां 20-20 दिन में बड़ी होती हैं। ये जेनेटिक फ़र्क है, आप जेनेटिकली उनको एडवांस किया गया है, उनकी ब्रीडिंग डिफरेंट है, उनका इंटरेक्शन दूसरी जीन वालों से कराया गया है, तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ रेट में फ़र्क आया है। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो ख़राब हो गई या वो कुछ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये एक तरह की, मैं इसको हमेशा ये कहती हूँ कि ये एक मिथ ही है, क्योंकि मुझे ये बात हजम ही नहीं होती कि हार्मोन के इंजेक्शन जो है वो हर एक मुर्गी को लगाए जा रहे हैं। लाइक आप इतनी मुर्गियां हैं, आप हर इंजेक्शन अगर लगाएंगे तो वो तो पता नहीं कहाँ उसकी कॉस्ट चली और जाएगी। हम खवातीन पर बैन लगा दिया था कि चिकन मिक्स नहीं खाने। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मेरा हमेशा टैगलाइन होती है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, बस। आपने उस चीज़ को कम खाना है तो कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। अच्छा, आपने पोर्शंस कंट्रोल की बात की, लेकिन पहले हमारे जो थे बुजुर्ग, वो कहते थे ना कि नाश्ता बादशाहों वाला होना चाहिए, लंच वजीरों वाला और डिनर फकीरों वाला। तो ये पोर्शंस पर और हैवी पर, और जैसे आपने देसी घी और ऑयल, तो अगर हम ब्रेकफास्ट, जैसे वर्किंग वुमेन है, अगर ये सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट को मॉनिटर कर लें और अच्छा ले लें, तो डोंट यू थिंक कि ये उनके लिए फ़ायदा होता है? क्योंकि बाद में वो वर्क प्लेस पे, आपको पता है आजकल लंच टाइम भी होता है, लेकिन लंच का कोई टाइम रहा नहीं। मैं इस पे आपको रिसर्च शेयर कर देती हूँ। वो लोग ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं जो नाश्ता नहीं करते। ये रिसर्च है, ये इम्प्लीमेंट करके देख लें अपने ऊपर। जो लोग नाश्ता नहीं करते वो ज़्यादा मोटे होते हैं, और जो नाश्ता करके आते हैं वो कम मोटे होते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नाश्ते में 2 पराठे खा लें आप, ऐसा भी नहीं कहा। लेकिन नाश्ता ज़रूर करें, और नाश्ते के अंदर अपने कार्ब्स और प्रोटीन को बैलेंस करें। पापे खा लिया आपने, कैन यू इमेजिन एक पापे के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं? एक पापा आपको तकरीबन समझ लें आप एक रोटी के बराबर कैलोरीज देता है आपको। आपको पता है, आप हाफ रोल खाते हैं बिस्किट का, हाफ रोल खाते हैं, पता नहीं, मैं तो ज़माने से नहीं खाया, 15 का है 20 का है हाफ रोल जो आप खाते हैं, तो वो हाफ रोल आपकी 3 रोटियां हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन वो आपको भूख क्यों लग रही है? इसलिए कि वो तो शुगर की फॉर्म में है, वो फौरन ब्लड में शामिल हो जाते हैं। जब आप रोटी खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जा रहा है, जिसको अभी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, तो वो आपके स्टमक में ज़्यादा देर रहता है। लेकिन अगर आप बिस्किट्स खाते हैं, ये चीज़ें खाते हैं, तो वो फ़ौरन ब्लड में शामिल हो जाती हैं। इसलिए आपको लगता है कि आपने तो कुछ खाया नहीं, हमने तो एक हाफ रोल खाया है बस आज सुबह से। आप तो 3 रोटियां खा के बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं आपने हाफ रोल खाया है। तो नाश्ता करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाश्ता नहीं करेंगे तो फैट को बर्न करने वाली मशीन ऑन कैसे होगी भाई? अगर आपने उस मशीन को ऑन करना है तो आपको कुछ खाना है। वो सो गई, उसने कहा फैट तो बर्न नहीं करना, तो वो फैट इसी तरह रखा रहेगा आपके पास। ग्रीन टी मेरे जहन में आ रहा है, आजकल ग्रीन टी काफ़ी फेमस है, और खवातीन में और सबके लिए, खैर खवातीन नहीं, मेल फीमेल दोनों, उनको लगता है कि ग्रीन टी से हम अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। बट डॉक्टर सेड कि जो लोग ये दूसरी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और उनको लगता है ग्रीन टी पर ही फोकस होता है, तो वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। ग्रीन टी का एक टाइम होता है पीने का, और हमारे यहाँ वही वाला हाल है ना, पूरा खा लिया, सब कुछ खा लिया, उसके बाद डाइट कोल्ड ड्रिंक ढूंढते हैं। डाइट कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? तो ये बिल्कुल सेम सिनेरियो है। आपने सब कुछ खा लिया, उसके बाद आपने ग्रीन टी पी ली। जी, ये हो रहा है ना आजकल। मैं पीती हूँ। ग्रीन टी हमेशा जो है जनाब खाने से पहले पी जाती है। खाने के बाद वो कुछ नहीं करने वाली आपका। आपने ग्रीन टी, आप आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले आप ग्रीन टी ले लें, लेकिन उसके साथ साथ डाइट को कंट्रोल करें, तो आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ब्राउन शुगर इज़ मच हेल्दियर देन यूजिंग वाइट शुगर। जितनी मेरी नॉलेज है तो ब्राउन शुगर में एडेड मोलासेस होता है विच इज़ नॉट हेल्दियर। तो इसके बारे में मुझे पूछना है कि इज़ दिस, मतलब मेरी गलत अंडरस्टैंडिंग है या लोगों की गलत अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो ग्रीन टी के अंदर ब्राउन शुगर डाल के पी रहे होते हैं कि यार दैट्स हेल्दियर। मोलासेस किसे कहते हैं बेसिकली? मोलासेस जो है वो मोलासेस क्या है, पहले तो मैं ये डिफाइन करता हूँ। मोलासेस जो है वो शुगर से पहले की फॉर्म है। यानी आप जब शुगर को क्लैरिटी की तरफ लेके जाते हैं, रिफाइनिंग की तरफ लेके जाते हैं, तो उससे पहले की स्टेज को मोलासेस बोलते हैं। और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर फाइबर ऐड हुआ होता है। ठीक है, गन्ना है ना, गन्ने में से निकाला है सब कुछ। मोलासेस आपके लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है, वो अनरिफाइंड फॉर्म है। उस मोलासेस से फर्दर ही आपकी वाइट शुगर बनती है जनाब, उसी से आपकी ब्राउन शुगर बनती है। लेकिन एक बात याद रखिए, मार्केट में इस वक्त जो ब्राउन शुगर मौजूद है वो सिर्फ नाम की ब्राउन शुगर है, वो कलर्ड शुगर है। आपके पास ब्राउन ब्रेड मौजूद है। मैं आपको इसलिए शुरू में मैंने आपको कहा कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रू पता चल जाएंगी। आज जो ब्राउन ब्रेड है वो सिर्फ ब्राउन ब्रेड है। बेसिकली उसका नाम होता है ब्राउन ब्रेड, जिसके अंदर ब्राउन की एडिशन हुई हुई हो, वीट के छिलकों की एडिशन हुई हुई हो, लेकिन वो नहीं होती। तो आप वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड दोनों आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बजाय अपने 10-15 रुपये और ज़ाया करने के। जहाँ तक शुगर की बात रही जनाब, तो मैं आपको इसमें बताऊँ कि आपको इसमें गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए। आप ब्राउन शुगर की तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ, आपको एक्सपेंसिव भी पड़ती है और फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। आप गुड़ ले लें, लेकिन गुड़ भी अनरिफाइंड, वो भी शक्ल से पता चल जाता है कौन सा वाला गुड़, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी आपने लिमिटेड यूज़ करनी है। उसकी क्वांटिटी भी ये नहीं कि मैं शुगर यूज़ नहीं कर रही तो चलो मैं वो गुड़ ज़्यादा डाल लेती हूँ, वो ज़्यादा मीठा है, वो ज़्यादा मीठा है। लेकिन उसमें आपके पास ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है। लेकिन फिर अगेन फूड पिरामिड सबसे टॉप पे रखा हुआ है उसमें स्वीट। उसका मतलब ये कि सबसे कम कंज्यूम करना है आपने स्वीट। तो आपका हेल्दी ऑप्शन है ये, आप हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाएं, आप वाइट शुगर छोड़ दें, ब्राउन शुगर की तरफ, ब्राउन शुगर नहीं गुड़ की तरफ आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन कंज्यूम थोड़ा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, उतना ही करना है जितना आप एक वाइट शुगर को करते हैं, लेकिन आप एक हेल्दी ऑप्शन की तरफ चले गए। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको भी अपनी ज़िंदगी से खारिज कीजिए और थोड़ा ही इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी बात का जवाब। Okay, two questions. One is that what is the perfect balance of a meal that you should have for lunch and dinner? Secondly, because you refer to the food pyramid, so now the thing is that how much of each food item can you actually have in that pyramid? And secondly, staying a little bit from the breast cancer and going more towards the diabetes side, what is your best intake for white rice versus something that is made from flour like bread, chakki ka atta, roti and all that stuff? ये दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात हो गई कि अगर मैं सब पोर्शंस और उसकी बात करूँ बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुझे इसके लिए 2-4 घंटे चाहिए बात करने के लिए। नहीं, आइडिया भी मैं आपको सीरियसली मैं आपको आइडिया भी नहीं दे सकती। अगर मैंने आइडिया दिया शायद थोड़ा आप लोग गलत उसको ले जाएंगे। उसके लिए 3 से 4 घंटे चाहिए मुझे बात करने के लिए, और उसमें उसको समझाना पूरा फूड पिरामिड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सीरियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसको सारे सर्विंग साइजेस समझाना ये पूरा टॉपिक है ये। जो दूसरी आपने बात करी ना चक्की के आटे की, वो मैं ज़रूर एड्रेस कर लेती हूँ कि चक्की का आटा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो बेसिकली जो आप छानते हैं ना, और छानने के बाद जो चीज़ आपकी आती है उसको आप ऐड कर लिया करें आटे में। सिर्फ छाना करें आटे को उस वक्त जब आपको लगे कि कुछ सूनियाँ तो नहीं पड़ गई उसमें, तब छाना करें, वरना आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। और चक्की का आटा प्रेफरेंस इसीलिए होता है कि उसके अंदर फाइबर कॉन्टेंट ज़्यादा है वाइट आटे की निस्बत। वाइट आटा आपके पेट में जाएगा, जल्दी ब्लड में शामिल हो जाएगा। चक्की का आटा आप कंज्यूम करेंगे तो आपके जिस्म में, स्टमक में ज़्यादातर रिटेन करेगा वो फाइबर कंटेंट होने की वजह से। तो बेहतर ऑप्शन, अच्छा आपने, मैं मिस कर गई थी, आपने ब्रेड की बात भी करी और चावल। यस, देखिए चावल और ब्रेड इन दोनों से बेहतर ऑप्शन रोटी होता है। उसकी वजह क्या है, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब मैं बहुत आसान ज़बान में ही बता देती हूँ कि वो चीज़ जो आपके ब्लड में जितनी जल्दी शामिल हो जाती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। जो चीज़ देर में शामिल होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो आपका हमेशा बेहतर ऑप्शन रोटी होता है। चावल और ब्रेड से बेहतर ऑप्शन रोटी है, लेकिन चावल बंद नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया उसमें विटामिन बी बहुत क्वांटिटी में। बंद नहीं आप करें, लेकिन आपने उसको कंट्रोल करना है, आपने उसको चेक रखना है कि आप हफ्ते में कितनी दफ़ा और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन रोटी इज़ अ बेटर ऑप्शन। Okay, ma'am, I do have a question. After the age of 40 in women, you recommended to avoid using milk. Instead of that, you can use yogurt. So, what is the difference in that? And either milk is beneficial or yogurt? देखिए मैंने बताया कि योगर्ट जो है ना, बेसिकली उसका एक प्रोसेस है और उसके अंदर एक बैक्टीरिया हम ग्रो कराते हैं, ठीक है। आपने एक नॉर्मल तरीका देखा होगा ना कि आपने घर का योगर्ट का एक चमचा लिया, दूध में शामिल किया और वो योगर्ट बन जाता है। तो उसके पीछे एक साइंस है ना, उसके पीछे एक बैक्टीरिया है जिसको हम ग्रो करा रहे हैं, और वो गुड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। हमारी जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं, और हमारा जो गुड बैक्टीरिया है वो भी वही है। तो हम जो रिकमेंड करते हैं ना योगर्ट, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं, बहुत सुना होगा आपने इश्तिहारों में, जो प्रोबायोटिक्स हैं वो उसके अंदर ज़्यादा होते हैं योगर्ट में।
और मिल्क की एक टेंडेंसी है एब्जॉर्बेंस की। आप छोटे से बच्चे को दही नहीं दे सकते, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, मिल्क कर सकेगा। इसी तरीके से 40 के बाद उसके अंदर केमिकल इतना चेंज आ जाता है कि अब आपकी बॉडी के अंदर इतना चेंज आ जाता है कि आप उस मिल्क का जो कैल्शियम है ना वो उस हद तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जो कि आप योगर्ट से ले पाते हैं, क्योंकि उसको हमने केमिकली चेंज कर दिया है, उसकी नेचर चेंज है, उसकी नेचर ऐसी हो गई है कि अब वो कंपैटिबल हो गया आपकी बॉडी के साथ। तो आप चीज़, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट कहलाते हैं, असल में साइंटिफिक टर्म हो जाती है, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो आप ये जब कंज्यूम करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो कैल्शियम मिलेगा रादर देन मिल्क। Thank you. Acha, one more question. Nowadays, we are seeing women are suffering from a hormonal disbalance due to which they are having problems in their monthly cycles and irregular periods. So, in that stage, what kind of diet would you recommend to the women to avoid these problems in their bodies? अवॉइड जंक फूड। हमारे यहाँ जो है वो आपको खुद ही पता है कि रेशो कितना बढ़ गया है जंक फूड का। हमारे यहाँ कोई इनोवेशन आती है ना किसी प्रोडक्ट में, तो वो इनोवेशन ये आती है उसके अंदर चीज़ बढ़ा देते हैं, इनोवेशन आती है उसको तो डबल बर्गर कर देते हैं, डबल चीज़ बर्गर। तो आप खुद अपने आप को थोड़ा खंगालें कि आप लोग क्या कंज्यूम करते हैं, थोड़ा देखें ना अपने आप को खुद भी। अभी टी हुई, कितने लोगों ने टार्ट छोड़े। एक एग्जाम्पल, सॉरी लेकिन एक एग्जाम्पल, सब नहीं खाए होंगे। वो टार्ट आपको कितनी कैलोरीज दे गया बैठे बैठे, उसके अंदर क्या ऐसा फायदेमंद चीज़ थी जो आपने कंज्यूम करी और उससे आपको फ़ायदा हुआ। कैलोरीज तो ले ली और आपकी एक्टिविटी इतनी देर में क्या रही, सिर्फ सीट पे बैठे हुए हैं आप बस। ये काउंट करने की ज़रूरत है हमें। जिस दिन हमें ये पता चल जाता है ना कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरीज कितनी है, तो आप बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं, अरे ये तो हमें नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है हम खा क्या रहे हैं। और आप जो चीज़ भी लेते हैं ना, तो उसका आपको बस अगर ये पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। असल में हर एक को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि किस तरह से आप ले रहे हैं उस चीज़ को और क्या किस चीज़ से बनी हुई है वो चीज़, तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करेंगे। हमारे यहाँ जंक फूड की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, आप लोग समझें इस बात को। हम हर दूसरे घरों में खाने आ रहे होते हैं, अब कितनी सर्विसेज आ गई हैं कि खाने आपके पास बने बनाए आ जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को मॉनिटर करें, कितना आप घर का खाना खाते हैं, कितने घरों में रोज़ वेजिटेबल बनती है, कितने घरों में रोज़ जो है वो दालें बनती हैं। हमारे ट्रेंड्स भी चेंज हो गए, इवन के हमारे बच्चों के ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। हमें तो हमारे कितने घरों में आलू मंगोचियाँ पकती हैं, ज़रा मुझे बताएं। देख लिया, पता भी नहीं है कुछ लोगों को। सही है। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमने टार्ट्स खाए, अब हम लंच भी करने वाले, उसी में ये ना सोचे लेते हुए कि हम क्या खा रहे हैं और आपके पास सारे प्लेट लेकर। अच्छा, होता यही है कि आपके कहने का मतलब भी यही है कि जो कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं, क्या हमारी फिजिकल मूवमेंट, हमारी एक्टिविटी इतनी है कि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न आउट कर लें। सिंपल सा फार्मूला है, सब खाइए, स्मॉल पोर्शन में खाइए, लेकिन उसके बाद आपकी फिजिकल मूवमेंट इतनी होनी चाहिए कि आपने उसको बर्न आउट करना है। अच्छा, कार्टिलेज को लेकर मेरे सवाल है कि 40 प्लस के बाद फीमेल्स के अंदर कार्टिलेज नहीं बनता, और उससे पहले कहा जाता है बच्चों को, यूथ को, जितना आप उनको मिल्क इंटेक या डेयरी प्रोडक्ट्स इंटेक करवा सकते हैं करवाइए, क्योंकि 40 प्लस के बाद आपका कार्टिलेज नहीं बनता, वो स्टोर होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे गैप्स, नी रिप्लेसमेंट, ये सब प्रॉब्लम आती है, जोड़ों का दर्द और एवरीथिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब यहाँ पर 40 प्लस भी मौजूद है और अंडर 40 भी है। अच्छा, अंडर 40 जो आजकल, जो मुझे भी बताएं, मेरी भी बेटी है, दूध नहीं पीना, बहुत सारी नखरे हैं उनके कि मोटे हो जाएंगे, या उनको वो टेस्ट, और ड्रिंक्स वो बड़े आराम से पी रहे होते हैं। ठीक है, दोनों का बताइएगा कि उनके लिए क्या किया जाए, और जो 40 प्लस हैं और हमें अपना कार्टिलेज हमारा नहीं बन रहा, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट क्या है जिससे हम अपने ये जो जोड़ों का दर्द है या बोन पेन है या ये सारी जो चीज़ें, उससे हम बचें। हमारे घरों में पाए बनते हैं ना, सही है, सर्दियों में बनते हैं, सर्दियों में बनते हैं, वहाँ से हम बहुत सारा हासिल कर लेते हैं। ठीक है, आपको अपने बॉडी की जिस चीज़ को मजबूत करना होता है ना, आप उसी चीज़ का, उसी जगह का, हिस्से का गोश्त खाते हैं। तो हमारे यहाँ उसको भी एक बुरी ग़िज़ा करार दे दिया गया है। उसकी वजह ये जनाब इसलिए दे दिया गया क्योंकि हम उसके अंदर ऑयल एक्स्ट्रा बहुत ऐड कर देते हैं।
उसके अंदर अपने अंदर इतना ऑयल होता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो हमेशा वही वाली बात करती हूँ कि छोड़ें कुछ नहीं, खाएं सब कुछ, पाए भी खाएं, वो अपने उसके अंदर अलग अफादियत है। अगर आप वो, हम तो सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं फ़ौरन, बस ये इसका सप्लीमेंट ले लें, उसका सप्लीमेंट, जबकि हमें सब कुछ मिलता है वहाँ से। तो आप क्यों नहीं खाते? आप वो चीज़ खाएं। हम गूदा नहीं खाते। इट्स वेरी वेरी मतलब कहना चाहिए कि हमें अवेयरनेस नहीं है ना। हम कहते हैं यार इसको खाएंगे मोटे हो जाएंगे। भाई क्यों मोटे हो जाएंगे? अगर आपकी कैलोरी डेफिसिट है तो क्यों मोटे होंगे? या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, हाई ये हो बहुत जाएगा। सारी ये चीजें मिथ्स वहाँ है, पे। आपको कंट्रोल करना है। अगर आपने थोड़ा सा खा लिया तो क्या आप क्यों मोटे होंगे? हाँ, अगर आप बार बार खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपने अपने पूरे दिन का ट्रैक रखा हुआ है कि मेरे पेट में इतना कार्ब गया है, इतना प्रोटीन गया है, इतना ऑयल गया है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ से। जब भी तो पुराने लोग हर चीज़ खाते थे, हर चीज़ खाते थे, और माशाल्लाह उम्रें भी ज़्यादा है माशाल्लाह से। तो वो हर चीज़ खाते थे और माशाल्लाह सेहतमंद है। देसी घी खाते थे, गूदे खाते थे, पाए खाते थे, सब देखिए, कुछ। मैं तो विटनेस हूँ कि जैसे आप गांव देहात में चले जाएं, वो इतनी गर्मी में काम कर रहे होते हैं, वो एक रोटी के ऊपर प्याज रख के खाते हैं, एंड दे आर हेल्दी। हमसे ज्यादा मतलब बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी मुश्किल फिजिकल काम है। एक्टिविटी नहीं है ना, तो इसीलिए। लेकिन आप क्वांटिटी कम करें उस चीज़ की, लेकिन खाएं, हर चीज़ खाएं, तो कार्टिलेज की कमी क्यों होगी? और उम्र के साथ साथ तो जब बनने में का अमल ही कम हो जाता है, डिक्लाइन आ रहा होता है हर चीज़ का, तो वो आप अपनी खुराक सही रखें बस। उसमें अंडर 40 भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ यंग यूथ टाइप की गर्ल्स भी यहाँ पर मौजूद है। उनको क्या कहना चाहेंगे अगर वो इस वक्त ये डेयरी प्रोडक्ट से दूर भाग रहे हैं? जो अंडर 40 है उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बड़ा दुख होता है जब इंसान की उम्र आगे चली जाती है ना, कि उसने उस वक्त में ये क्यों नहीं किया। मतलब लिटरली मैं अपनी बेटी को यही कहती हूँ कि बेटा, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ पर आने का। और आज जिस तरह हमने एक इवेंट, एक बड़ी इंफॉर्मेटिव और हेल्दी सेशन अरेंज किया आपके लिए, थैंक्स टू डीपी वर्ल्ड जिन्होंने ये मतलब अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया। और इस इनिशिएटिव के पीछे एक ही मैसेज है, टू अवेयर यू, और आपको गाइडेंस दी जाए, आपको नॉलेज दी जाए। डिसाइड जो भी आपकी वर्क रूटीन है, जो भी आपकी लाइफ है, उससे से खासकर ख़वातीन को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो जब मैं मीडिया पे नहीं आई थी तो मेरे पास मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस की एक डिग्री थी। बट लेटर ऑन जब मैंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से ड्यूरिंग माई कैरियर इन चैनल, जब मैं डॉक्टर से मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई जो बेसिक हमें मालूम होनी चाहिए घर में रहते हुए। जब मैं लॉर्ड से मिली तो मुझे वो चीज़ें पता चली कि कभी भी ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम आता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेयर आई कैन अप्रोच। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो डिग्री हम कर लेते हैं, हाउस वाइफ्स की बात कर रही हूँ, आपकी नहीं, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना, ख्याल रखना, केयर करना, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इग्नोर कर देती हैं, इवन उनकी डिग्री भी वेस्ट होती है। लेकिन जब हम इस तरह के सेशंस में आते हैं, एक्सपर्ट्स से मिलते हैं ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, फोर्स के लोग हो, उससे आपको एक अवेयरनेस ये मिलती है कि ज़िंदगी की कभी भी किसी भी वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता लग जाता है कि आपने कहाँ अप्रोच करनी है। तो इस तरह के सेशंस जब भी कंडक्ट हुआ करें, ज्वाइन किया करें, आया करें। ये आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, इवन आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल साबित होती है। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सदस्य के वो थैंक्स नोट के साथ आगे की तरफ प्रोसीड करें, जो कि हमारा लंच है। और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने तो पहले ही हमें डरा दिया है कि आप कैलोरीज अब मुझे छुप के खाना पड़ेगा। नहीं, आप हमें छुप के खाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा इसमें कितनी कैलोरीज है। Thank you everybody for coming. Lunch is served at Asia Live, and those who will be giving us feedback, can you please wait back for 5 minutes? The rest please proceed to Asia Live.